آمد ناحقنا ہے، ہائے حسین ہائے حسین۔ السلام علیکم۔ پہلی دفعہ اپنی اس بہار کی سرزمین پر ذکر مولا کی غرض سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اتفاقاً یہ پروگرام کا بھی پہلا دور ہے، مگر قدرت کی رحمت کہ وہ بارش کی ہلکی ہلکی قطرے رحمت کی شکل میں ان عزاداروں پہ سایہ فغن ہیں۔ مجھے الفاظ نہیں ہیں، میں کیا بولوں، کیسے بولوں۔ یہاں کا ماحول آنے کے بعد فرش پہ بیٹھنے کی عزاداروں کے لیے واقعاً جگہ نہیں ہے، مشکل ہے، مگر میں جو بھی عزادار آپس کی باتوں میں مشروف ہے ان سے برائے کرم گزارش کروں گا کہ کم سے کم وہ ذاکر کے سامنے مائک کے پاس آ جائیں، تاکہ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی مہمان آپ کے درمیان آیا ہے تو وہ کچھ سوچ کر آیا ہے، کچھ پیغام دینے کے لیے آیا ہے، کچھ پڑھنے کے لیے آیا ہے، کچھ سنانے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے، چاہے وہ انسان کہیں سے بھی عزادار آیا ہو، وہ میں بس ایک ہی بات جانتا ہوں، ایک ہی لفظ جانتا ہوں کہ جو عزادار وہ چاہے سریا سے آ جائے، چاہے بمبئی سے آ جائے، چاہے دلی سے آ جائے، چاہے گوپالپور سے آ جائے، چاہے اسی پٹنہ کی سرزمین سے الگ الگ علاقوں سے آ جائے، وہ عزادار صرف اور صرف عزادار ہوتا ہے، باقی کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسی حوصلے کے ساتھ پروگرام کا اہتمام کرنے والے اہتمام کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے جو وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیتے ہیں، مگر پروگرام کو کامیاب بنانا یہ سامعین کی ذمہ داری ہے، یہ تمام عزاداروں کی ذمہ داری ہے کہ جس خلوص کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ ہم گھر سے چل کر اس 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کرنے کے لیے اور فضائل محمد والے محمد، مصائب اہل بیت الاطہار سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اسی کام میں، اسی فرض کو، اسی اپنی ڈیوٹی کو جس نیت کے ساتھ ہم گھر سے چلے ہیں، اس نیت پہ اگر ہم عمل کر کے اس فرش عزا تک آ جائیں تو یہ ہمارا آنا بھی سوارا، مقصد عزا بھی سوارا، مقصد عزا کی حقیقت بھی ادا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمارا سلام ہو، آئیے میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ تمہیداً چند جملے تھے، میں بڑے ادب و عزت و احترام کے ساتھ میں تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گزار ہوں تو وہ میرے قریب آ جائے، جو آپس میں سمٹے ہوئے ہیں، کیونکہ جب دانے بکھرے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جب یہی دانے پیرو دیے جاتے ہیں تو تسبیح زہرا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے جب نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا ثواب اور ہوتا ہے، جب فرادے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا ثواب کچھ اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ آج کے اس پروگرام کی فہرست کچھ اس طریقے سے ہے۔ مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے اپنے مخصوص انداز میں بہترین مرثیہ خوان جناب محسن علی معصومی صاحب۔ نوخوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہندوستان کا مشہور و معروف، اس وقت پورے ہندوستان میں کہیں محتاج تعارف نہیں، جناب ریحان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ خطابت خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید قلب رشید رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ ایک عالم دین جو واقعاً بہترین عالم دین، بہترین خطیب ہیں، شاید پٹنہ کی سرزمین پہ پہلی دفعہ آئے ہیں، مولانا سبطین رضوی صاحب قبلہ، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ نقابت کے فرائض انجام دیں گے، لہذا مولانا عامر قاسمی صاحب جو مظفر نگر کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہیں، مل جل کے اب تمام حضرات سے گزارش ہوا ہے صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ نعرہ تکبیر،
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी। आइए हमारा सलाम हो उन अज़ादारों पे जिन्होंने यह ख़ास एहतमाम ताबूत 18 बनी हाशिम का किया है, और हमारा सलाम है उन तमाम अज़ादारों पे जो इस ताबूत 18 बनी हाशिम की ज़ियारत करने के लिए अपने आराम को, बिस्तरों को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। कायनात की अज़ीम तरीन ज़ात का नाम है ज़ात हुसैन इब्न अली। हुसैन किसी एक मजहब, किसी एक कौम, एक कबीले का नाम नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी, एक अजीम ज़ात का नाम है हुसैन इब्न अली। ये मजलिस ऐसा हम ये ना सोचे या लोग ये ना सोचे कि ये मजलिसें जो होती हैं सिर्फ हुसैन का जिक्र होता है इस मजलिसों में। इस मजलिसों में सिर्फ इमाम हुसैन का जिक्र नहीं होता। इन मजलिसों में सिर्फ करबला के शहीद का जिक्र नहीं होता। जुमला पेश कर दूं, इस मजलिसों में मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र खुदावंद आलम का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र मोहम्मद अरबी का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र दरिया की बहती हुई रवानी का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र समंदर की तुगयानी का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र सूरज की कंदिलों का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र चांद की रोशनी का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र सितारे की चमक का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र आदम का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र आदम के इल्म का होता है। मजलिस, थोड़ा बेदार हो जाइएगा तो हौसला मिल जाएगा कि मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र आदम का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र आदम के इल्म का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र नबूवत का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र यहया का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र ज़करिया का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र यूसुफ का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र हुस्न यूसुफ का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र मूसा का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र मूसा की हैबत का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र ईसा का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र ईसा के ज़ुहद का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र 1,24,000 अंबिया का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र इंसान का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र इंसानियत का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र परिंदों का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र फूलों की महक का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र कलियों की चटक का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र जालियों की लचक का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र नूह का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र अदादारों का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र जर्रे जर्रे का होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस सिर्फ इमाम हुसैन की मजलिस नहीं है। मैं मिसरे पढ़ दूं, अगर आप बेदार है तो मैं मिसरे पढ़ देता हूं। कौन है हुसैन? कि नूर तीनत, नूर सीरत, नूर सूरत है हुसैन। मुझे नहीं पता दूसरे मिसरे का इस्तकबाल ये मजमा ये अज़ादार कैसे करेंगे। मैं दूसरा मिसरा पढ़ देता हूँ, आपकी ज़ौक़ समातों की अदालत में रखता हूँ कि नूर तीनत, मैंने मीर तकल्लुम के मिसरे का इंतखाब किया है कि नूर तीनत, नूर सीरत, नूर सूरत है हुसैन। कौन है हुसैन? मुनाज़ा फरमाइएगा कि नूर तीनत, नूर सीरत, नूर सूरत है हुसैन। फिर मिसरे दोहरा रहा हूँ ताकि आप मेरी तरफ पूरी तरीके से मुतवज्जे हो जाइएगा। नूर तीनत, नूर सीरत, नूर सूरत है हुसैन। अरे जिसका ज़ाहिर खुद खुदा है वो ज़ियारत है हुसैन। थोड़ा जागिएगा, थोड़ा बेदार हो जाइएगा, हौसला दे दीजिएगा। आपकी दुआएं लेने के लिए आया हूँ, हाज़िरी हो गई है कि नूर तीनत, नूर सीरत, नूर सूरत है हुसैन। जिसका ज़ाहिर खुद खुदा है वो ज़ियारत है हुसैन। यूं मेरी हर सांस पर तेरी हुकूमत है हुसैन। अल्लाहु अकबर। मिसरे की गहराई तक उतरिएगा, मिसरे संभालिएगा कि नूर तीनत, नूर सीरत, नूर सूरत है हुसैन। जिसका ज़ाहिर खुद खुदा है वो ज़ियारत है हुसैन। यूं मेरी हर सांस पर तेरी हुकूमत है हुसैन। धड़कने कम है तेरे मातम की बदौलत है हुसैन। थोड़ा सुनिए मिसरे। अब आपके ज़ौक़ समातों के हवाले बहुत कीमती शेर हासिल करता हूँ। क्यों? इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे दिलों में बसी है। नूर तीनत, नूर सीरत, नूर सूरत है हुसैन। जिसका ज़ाहिर खुद खुदा है वो ज़ियारत है हुसैन। यूं मेरी हर सांस पर तेरी हुकूमत है हुसैन। धड़कने कम है तेरे मातम की बदौलत है हुसैन। कि किस
पटना के जमानतों के हवाले मिसरे कर रहा हूँ। किस कदर खातिर मिलाऊं बादशाह वक्त को, किस कदर खातिर मिलाऊं बादशाह वक्त को, उसकी दौलत मालो सर है मेरी दौलत है हुसैन। हाय 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 हाय, उसकी दौलत मालो सर है मेरी दौलत है हुसैन, उसकी दौलत मालो सर है। देखिए मुझे बहुत अच्छे से पढ़ने आता है, मैं बच्चे वाले भी हल्कत से पढ़ना जानता हूँ, आपकी दुआओं से बहुत पढ़ लिया है, अब उतनी एक्सपीरियंस हो गया तो किस सामाइन में कैसे पढ़ना, मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगा, आप इसके लिए नहीं। नूर तीनत नूर सीरत नूर सूरत है हुसैन। एक शेर और इसी सिलसिले का हाजिर करता हूँ, माहौल इंशाअल्लाह बना के ही मैं से आँखों को आवाज़ दूंगा कि नूर तीनत नूर सीरत नूर सूरत है हुसैन, जिसका ज़ाहिर खुद खुदा है वो ज़ियारत है हुसैन, यूँ मेरी हर सांस पर तेरी हुकूमत है हुसैन, धड़कने कम है तेरी मातम की बदौलत है हुसैन। किस कदर खातिर मिलाऊं बादशाह वक्त को, उसकी दौलत मालो सर है मेरी दौलत है हुसैन। कि देख कर करबो बला को पूछते हैं अंबिया, देख कर करबो बला को पूछते हैं अंबिया, देख कर करबो बला को पूछते हैं अंबिया, हम भी आ जाए ज़ियारत को इजाजत है हुसैन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देख कर करबो बला को पूछते हैं अंबिया, देख कर करबो बला को पूछते हैं अंबिया, हम भी आ जाएं ज़ियारत को इजाजत है हुसैन। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप ताबूत 18 बनी हाशिम की ज़ियारत करने आए हैं, मैं ये सोच रहा था मैं मौजू कहाँ से लाऊं, आगाज़ कहाँ से करूं। एक चीज़ है जो हर ताबूत में भी हर परचम में भी हुआ करती है, मैंने सोचा एक ऐसी चीज़, अगर हर शहीद के हवाले से मिसरे पढ़ने लगूँ तो खुद मैं काफ़ी टाइम ले लूँगा, मगर एक ऐसी चीज़ है दर अहले बैत से जब कोई चीज़ मंसूब हो जाती है तो उसकी फजीलत अलग हो जाती है, उसका मर्तबा अलग हो जाता है, उसकी शान अलग हो जाती है, उसकी पहचान अलग हो जाती है। उसी तरीके से दर अहले बैत से ये फूल मंसूब हुआ तो फूल ने अपनी अजमत बयान करना शुरू किया। फूल कहता है कि कैसे करता है चमन अश्क फिशानी, सुनिए जिसकी रूदाद है खुद उसकी ज़बानी, सुनिए एक मासूम की छोटी सी कहानी, सुनिए बेज़बा फूल की एजाज बयानी, सुनिए। मेरे भाई अगर आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइएगा तो इंशाअल्लाह कुछ पढ़ूंगा कुछ सुनाऊंगा और आप तक मिसरे पहुंचाऊंगा। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद का। बहुत कासिम जलवली के फूल के हवाले से बज़बाने फूल बयान कर रहा है, बज़बाने फूल पेश कर रहा हूँ। फूल कह रहा है कि कैसे करता है चमन अश्क फिशानी, सुनिए बैत सुनिएगा, कैसे करता है चमन अश्क फिशानी, सुनिए जिसकी रूदाद है खुद उसकी ज़बानी, सुनिए एक मासूम की छोटी सी कहानी, सुनिए बेज़बा फूल की एजाज बयानी, सुनिए कि दीदा दिल में भी शब्बीर का गम ताज़ा है, करबला वालों का हर नक्श कदम ताज़ा है। आप बेदार बैत सुनिएगा, बंद सुनिएगा, यहाँ से बतौर खास फूल बयान करता हूँ कि मैं हूँ वो फूल जो हर दावत मातम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो कौसर कभी ज़मज़म में रहा, मैं हूँ वो फूल जो तत्हीर के शबनम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा। हाय हाय सुनिए मिसरे मेरे भाई, थोड़ा बेदार हो जाइएगा। मैं हूँ वो फूल जो हर दावत मातम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो कौसर कभी ज़मज़म में रहा, मैं हूँ वो फूल जो तत्हीर की शबनम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा, कि मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है। हाय हाय मैं कैसे मिसरे पहुंचाऊं। फूल दर अहले बैत से मंसूब हुआ तो अपनी फजीलत बयान कर रहा है। बैत का मैंने एक मिसरा पढ़ दिया, दूसरा मिसरा आपकी समातों के हवाले करता हूँ, देखता हूँ आप कैसे इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ वो फूल जो हर दावत मातम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो कौसर कभी ज़मज़म में रहा, मैं हूँ वो फूल जो तत्हीर की शबनम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा, कि मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है। वो अलग फूल होंगे जो कहीं और सजाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, ये दर अहले बैत का फूल है, बयान कर रहा है। मैं हूँ वो फूल जो हर फूल से, मैं हूँ वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा, कि मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है। मिलके मैं हूँ वो फूल जो हर दावत। बहुत शुक्रिया, आप बेदार हो गए हैं। दो बंद इस सिलसिले के और पढ़ता हूँ, बेदार हो जाइएगा। कि मैं हूँ वो फूल जो हर दावत मातम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो कौसर
कभी ज़मज़म में रहा, मैं हूँ वो फूल जो तत्हीर की शबनम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा। मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीज़ों को शिफा मिलती है। देखेंगे कि मेरी खुशबू से मरीज़ों को शिफा मिलती है। ये फजीलत जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ फूल को मिली है। मुनाज़ा फरमाइएगा कि लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे। हाँ, मैंने मिसरे पढ़ दी है, मैंने मिसरे पढ़ दिए। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे। हाय हाय, थोड़ा बेदार हो जाइएगा। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे। मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे। हाय हाय, मैं जो गिर जाऊं तो बच्चे हैं यहाँ पे, मुनाज़ा फरमाइएगा। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे। मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे। नहीं, मैंने मिसरे बहुत कीमती पढ़े थे, शायद मैं मिसरे पहुंचा नहीं पाया आप तक, शायद मैं मिसरे नहीं पहुंचा पाया। भाई सुनिएगा कि लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे। मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे। कि खुश नसीबी है मेरी शाह के कम तक जाना, मेरी गैराज है गाजी के अलम तक जाना। खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाजी के अलम तक जाना। आप बिल्कुल बेदार हो चुके हैं। आखिरी बंद अमर सिया खां आपके हवाले, बहुत कीमती बंद, एक एक फर्ज से पूरी तवज्जो का गुजार हूँ, पूरी तवज्जो मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा। फूल बयान करता है कि मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब। हाय हाय, मैंने मिसरे पढ़ा हूं, मेरे तरफ मुतवज्जह रहिएगा तो मिसरे नजर नहीं होंगे, मिसरे आप तक पहुंच जाएंगे। कि मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम है मेरा निराला तो मेरी शान अजीब। हाय हाय, अजमत बयान कर रहा है फूल, अजमत बयान कर रहा, बस नहीं फूल पेश कर रहा हूँ। मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम है मेरा निराला तो मेरी शान अजीब। मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब, आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब। लीजिए, ये फूल, ये परचम देखिए, ये परचम की जगह पे यहाँ पे मश्क सकीना हुआ करती है और यहीं पे फूल हुआ करता है। जहन में रखिएगा, बैत आपके हवाले, शायर आपके हवाले। अब आप जाने आप कैसे इस्तकबाल करेंगे। मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम है मेरा निराला तो मेरी शान अजीब। आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, कि मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब। कि नामे अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ, नामे अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ, और गुफ्तगू मश्क सकीना से किया करता हूँ। गुफ्तगू मश्क सकीना से किया करता हूँ। बहुत शुक्रिया, एक एक फर्द का शुक्रिया। आपने दुआएं दी, आपने हौसला दिया, आपकी मेहनतों को, आपकी समातों को सलाम करता हूँ। आइए इज़्ज़त और एहतराम के साथ बेहतरीन मस्ती आखिर जनाब मोहसिन अली मासूमी साहब की खिदमत में गुजार हूँ, वो आए और मोमिन के कुलों को मुनव्वर फरमाएं। बाबा ज़बरन नारे सलवात साहब, इनका